Rahim. So welcome back. So I'm here with a very important topic, continuity of a function at a point C, right? This is very important. Definitely it would be related a bit to the previous topic as well. Let us get started with this. Function f of x is continuous. Function या तो continuous होगा या discontinuous होगा. When would it be continuous? ये हम डिस्कस करेंगे. For continuity, it should be satisfying the following conditions. कौन सी conditions? These three conditions, right? Number one is your function should be defined, right? Value of the function should be defined. अब define का क्या मतलब है? I'll be letting you know in detail inshallah. Then the second thing is limit should exist. और हमें पता है limit कब exist करती है. Limit exists when left hand limit is equal to right hand limit. We just discussed this in the previous video, right? और जब f of c यानी value of the function आपकी limit of the function के equal आ जाएगी, answers would be same, then we will say okay the given function is continuous. ठीक है. First of all let me explain to you what does value of the function mean. हम day 1 से chapter 1 के value of the function हम पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है जी. Still I'm going to explain it to you. For example, if you have f of x equals to 2x square plus 5x plus 3 and you have to find f of 1, let us say. Now this is value of the function. f की value है at 1 when x is 1. So this is called basically value of the function, right? This is 3. So 1 square means 1 plus 5 into 1 means 5 plus 3, 5, 3, 8 or 1, 9, 5, 3, 8, 10. 10 is the value of function. कितना सिंपल है. Once again, अच्छा अगर आपको कहा जाता है your f of x is, जैसे भी हमने we just did this previous question if you remember, x4 minus 9 divided by x minus 3, right? अब अगर आपको कहा जाता है find value of the function at f as minus 3, let us say. ठीक है. How are you gonna do this? ये चलो plus 3. How would you be doing this? Plus 3 whole square minus 9 डिवाइडेड बाय 3 पुट किया, 3 माइनस 3. यहाँ पे माइनस हो या प्लस हो उसका स्क्वायर तो इट वुड बी पॉजिटिव, सो इट वुड बी 9 माइनस 9 इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 माइनस 3 विच इज़ 0. सो इट वुड बी 0 डिवाइडेड बाय 0 फॉर्म. अगर कभी भी ऐसा आ जाए इट मीन्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड. ये देख सकते हैं आप, इट इज़ नॉट डिफाइंड 0 over 0 फॉर्म, राइट? अदरवाइज for example if I have a f of x equals to, let us say, okay, x plus 7 and I have to find f of minus 1. Let us see that value of the function at minus 1 exists or not, right? Is defined or not basically. So minus 1 plus 7 जहाँ x है उसकी जगह मैंने value put कर दी minus 1, 7 minus 1 is 6. This is called value of the function. और यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है it is defined. Unless and until it is not 0 over 0 form or infinity, it would always be defined, value of the function. ठीक हो गया. This was our condition 1 कि value of the function यानी f of x should be defined at x is equal to c. ये तो condition 1 हो गई. Condition 2 क्या है? That your limit x approaches to c, अगर c कोई भी point है 1, 2, minus 1, 7, 5, any point जिस पे आप डिस्कस कर रहे हो continuity, अगर उस पे आपकी लिमिट जो है वो क्या करती हो, एग्जिस्ट करती हो. अब एग्जिस्ट कब करती है लिमिट? व्हेन योर लेफ्ट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट. ठीक है जी. अगर ये चीज़ वैलिड होगी सो यू विल से ओके लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट्स. नाउ द कंडीशन 3 इज़ जब आपकी कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों एक दूसरे के आंसर्स इक्वल हों. फॉर एग्जाम्पल अगर इसका आंसर भी -2 होता और इसका आंसर भी -2 होता, सो वी वुड हैव सेड ओके -2 इज इक्वल टू -2, मीनिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन दे आर बोथ सेम और इक्वल, सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. ठीक है जी. एट दैट सर्टन पॉइंट, जो भी पॉइंट आपको गिवन होगा. वट इफ़ इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती? फॉर एग्जाम्पल इनिशियली वैल्यू ऑफ द फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, यू विल स्टॉप देयर एंड यू विल से ओके द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, वहीं पर ही. ठीक है. इफ़ first condition is satisfied but second condition मतलब value of the function does not exist, so you will say okay the function is discontinuous. ठीक है. and the third one is अगर first of all let us say आपकी condition 1 satisfy हो गई है, function जो है वो value of the function defined है, C2 आपका function जो है वो limit of the function भी exist करती है, but इन दोनों के answers equal नहीं हैं, so you will again stop and you will say the function is discontinuous at that specific point. ठीक हो गया. सो
for a function to be continuous, C1, C2, C3, they all should be satisfied. ठीक है, let me give you an example of a function to be डिसकंटिन्यूस. कैसे ही स्टार्ट से ये हमें कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जांपल अगर आपको एक पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है विच इज़ लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एक्स माइनस 3, तभी ये नॉट इक्वल आएगा. अब ये देखिए, अब अगर कहा जाता है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 3, मुझे अगर कॉन्टिन्यूटी 3 पे चेक करनी है, बट यहाँ तो मुझे एक ही कंडीशन गिवन है विच मीन्स एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 3. तो मुझे तो वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, फर्स्ट कंडीशन मेरी वैल्यू ऑफ द फंक्शन है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन शुड बी एट एक्स इज इक्वल टू 3. क्या मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें मैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड कर सकूँ? नो, देयर इज़ नो सच फंक्शन given to me. So that's how I'll be saying okay, the function is discontinuous at what? At x is equal to 3 directly. ठीक है जी. Let us get started with the question. I hope this is clear. Let us recall it once again. Number 1, value of the function at that certain point. वो point आप उस function में simply put कर दोगे, that would be value of the function. ठीक हो गया. C2, और अगर वो डिफाइंड है यानी 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी नहीं है तो फर्स्ट कंडीशन इज़ डन. C2 मीन्स लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट शुड एग्जिस्ट, और वो कब करेगी? जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट और राइट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट इक्वल होंगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी. और आर C3 वुड बी, क्या होगा हमारा C3? व्हेन दिस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन दे बोथ आर इक्वल. तो तब हमारा, चलें जी क्वेश्चन करते हैं, इंशाल्लाह इट विल बी मच क्लियर देन. ओके, द क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ हियर दे हैव गिवन अस 2 वैल्यूज़, यानी एक तरह से 2 पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस हैं ये, इसीलिए लॉन्ग में आता है, समटाइम्स शॉर्ट में भी. x इज इक्वल टू 2 पे भी हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है कि क्या वो x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है या नहीं. देन x इज इक्वल टू -2 पे भी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है कि क्या वो कंटिन्यूस है कि नहीं. तो 2 क्वेश्चंस हैं बेसिकली. लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, x इज इक्वल टू 2. राइट, इफ आई हैव टू डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2, व्हाट एम आई गोना डू? नंबर 1, माई कंडीशन 1, एंड व्हाट इज़ दैट? आई विल बी चेकिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2. ओके, नाउ लेट अस सी. x इज इक्वल टू 2 की बात हो रही है. x इज इक्वल टू 2 8 इस फंक्शन में यूज़ हुआ है ये, ठीक है, और मतलब नॉट इज़ इक्वल टू 2 बट 2 इज़ बीइंग यूज्ड हियर, और एक 2 यहाँ पे यूज़ हुआ है. यहाँ पे कैसे यूज़ हुआ है? x इज़ लेस देन 2. ये पढ़ना आपने, इसको रीड कैसे करना है? x को मेन बेस बनानी है, ठीक है जी. x यू हैव टू रीड इट फ्रॉम हियर, ठीक है, जहाँ पे x पड़ा हुआ है. x इज सिटिंग हियर और x की तरफ इसकी ये वाला मुंह है, ठीक है, ये चोंच है, ये वाली कॉर्नर है. सो इट मीन्स x इज़ लेस देन, दैट्स हाउ यू गोना रीड इट. x इज़ लेस देन व्हाट? दिस 2. अगर 2 की तरफ मुंह खुला हुआ है इट मीन्स 2 इज़ ग्रेटर, सो इट मीन्स x इज़ लेस देन 2. इट मीन्स यू विल बी टेकिंग दिस वैल्यू फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, और वो क्या है आपकी? x स्क्वायर माइनस 1. दिस इज़ योर फंक्शन विच वुड बी यूज फॉर योर लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड दिस वुड बी द फंक्शन फॉर विच विल बी यूज फॉर राइट हैंड लिमिट. वो तो खैर बात की बात है. अभी हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ द फंक्शन विच इज़ आर C1, राइट, सॉरी C1, वैल्यू ऑफ द फंक्शन. अब x इज इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं हम, तो x इज इक्वल टू 2 में एक तो है x इज़ लेस देन 2, दिस वन, कोई इक्वालिटी साइन नहीं है, तो इसमें फंक्शन आपका ये है. सेकेंड वन है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 विच इज़ 3. सो इक्वल टू 2 का मतलब है वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहाँ गिवन है f ऑफ 2, राइट. इक्वल टू 2 का मतलब यही है. सो इट मीन्स ये आप इस वाले में पुट करोगे. अब यहाँ पे तो डायरेक्ट आपको कांस्टेंट वैल्यू गिवन है विच इज़ 3. सो दिस वुड बी योर वैल्यू ऑफ फंक्शन. दिस इज़ योर इक्वेशन 1. क्लियर? नाउ लेट अस टॉक अबाउट कंडीशन 2 विच इज़ आर लिमिट ऑफ द फंक्शन. यू विल बी फाइंडिंग लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x कि क्या ये एग्जिस्ट करती है या नहीं, और वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से ही पता चलेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी फाइंडिंग लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2, और वो कैसे होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x. मेन थिंग इज़ फंक्शन कौन सा यूज़ होगा फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट. अब ये भी 2 है, ये भी 2 है. वी जस्ट डिस्कस्ड x इज़ लेस देन 2 जहाँ पे होगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी होगी पड़ी हुई, मतलब फंक्शन. तो ये दिस इज़ x स्क्वायर माइनस 1. So my function which is going to be used would be x square minus 1. Now simply you just have to put this 2 over here instead of x. आपने 2 put करना है. 2 square minus 1. तो 2 square means 4. 4 minus 1 is 3. This is your left hand limit,
राइट हैंड लिमिट क्या होगी मेरी, लेट अस चेक, थोड़ी सी जगह है, एनीवेज राइट हैंड लिमिट वुड बी, look at this, right hand limit मतलब x is greater than 2, now it would be this one जो भी इसके सामने है, which is 3 already, so we'll say okay like x approaches to 2 plus f of x and that is going to be this 3. Now this was my answer 3, this is my answer 3. You can see left hand limit and right hand limit, they are both equal, so limit of the function here exists. अब हमारे पास क्या हुआ, my condition 1 was satisfied, the function is defined and the value of the function was 3, right. My C2 limit of the function exists और हमने देखा कि limit of the function x approaches to 2 f of x exist करती थी, और exist कैसे करती थी, उसका आंसर था 3. C3 was, इन दोनों का आंसर should be equal, isn't it equal? Yes, it is equal, so we will say yes, f of 2 is equal to limit x approaches to 2 f of x, if they are both equal matlab 3 is equal to 3, so you will say yes, function is continuous at x is equal to 2. Let us do this on the same ground, we will be discussing continuity of x is equal to -2, right. पहली बात -2 के लिए कौन कौन से दो फंक्शंस हैं, वी कैन सी -2 यहाँ यूज़ हुआ हुआ है और यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है, तो -2 के लिए एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, डेफिनेटली यहाँ पे x इज़ लेस देन -2 है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट में यूज़ होगा, ये वाला फंक्शन फर्स्ट वाला, ठीक है जी, फर्स्ट फंक्शन वुड बी यूज इन लेफ्ट हैंड लिमिट और ये सेकेंड फंक्शन वुड बी यूज इन राइट हैंड लिमिट. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कंडीशन 1 व्हाट एम आई गोना डू, -2 पे चेक कर रहे हैं, x इज़ इक्वल टू -2 पे हम चेक करें, तो पहले तो लिमिट ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ -2. अब हम देखते हैं हियर इट इज़ x इज़ ये लेस देन -2 और फंक्शन है आपका 3x, और यहाँ पे नो आई थिंक दिस इज़ इक्वल टू एज वेल, येस आई वाज राइट, यहाँ पे देखें इट इज़ x इज़ लेस देन इक्वल टू -2, तो मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए वी विल बी यूजिंग दिस वन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू भी है, ठीक है जी, ये ऊपर वाले पे यहाँ पे इक्वल टू भी है. सो फॉर कंडीशन 1 which is value of the function yani f of -2, because I am checking the continuity at x is equal to -2, so my function used would be this one. So I'll be saying okay x की जगह पे -2 put किया and it would be -6. This is my value of the function, right. अब C2 की बात करते हैं, which is limit of the function यानी limit x approaches to -2, क्योंकि value is -2 जिस पे हम चेक कर रहे हैं, f of x exist करती है कि नहीं. इसके लिए we will be needing left hand limit, and we all know left hand limit. How do we find left hand limit? For left hand limit कौन सा वाला फंक्शन हम लेंगे, where x is less than -2, इक्वल वाला हमने यहाँ पे ले लिया, less than -2, तो this function would be used. We will say okay limit x approaches to -2 ऊपर माइनस for left hand limit f of x. अब हम पुट करेंगे फंक्शन लिमिट x approaches to -2 ऊपर माइनस, and the function which is being used for this is 3x. Now put the value 3 into -2 which is -6. This is my answer of this. अब right hand limit find out करते हैं, यहीं पर ही right hand limit के लिए we will be taking this function, क्योंकि here you can see x is greater than -2. So I'll be saying okay x approaches to -2 plus, and the function would be this one. It would be x square minus 1. Put the value -2 square minus 1. So -2 square means 4. 4 minus 1 is 3. Oh my god. This answer was -6. This answer was -6 as well. But look at this answer. This is 3. So it means left hand limit is not equal to right hand limit. अगर दोनों limits ही equal नहीं है, so simply you will say limit x approaches to -2 f of x does not exist. अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, चाहे वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट कर रही थी, डिफाइंड थी आई मीन, बट आई टोल्ड यू इफ any of the condition would not be satisfied, function would be discontinuous. So we will say okay the function is discontinuous, it is discontinuous at x is equal to -2, right. Let me show you here. Okay, now let me show you here. I have done the solution, all of it which I discussed there. At x is equal to 2, how are you going to do this? At x is equal to 2 you will be doing it this way. C1 means condition 1 कैसे करनी थी हमने, at this value f of 2, right. ये दिखा दूँ मैं. At x is equal to 2 if you remember,
2 के लिए हमने ये फंक्शन लिया था, क्योंकि यहाँ पे है एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो हमने इक्वल को माइंड में रखना है। एक्स इज़ ग्रेटर देन तो है, वो तो हमारा राइट हैंड लिमिट में यूज़ होगा, बट इक्वल टू 2 भी यूज़ हुआ है, सो वी विल बी टेकिंग दिस 3 फॉर वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है जी, यहाँ पे दैट्स वाई वी टुक एफ ऑफ 2 एज 3। लेट मी चेंज द कलर। ओके, नाउ लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2 कैसे होगा, यानी ये हमने फाइंड आउट करना है बेसिकली, और उसके लिए हम लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करेंगे। लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए यू ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड कौन सा वाला फंक्शन लेंगे और क्यों। वो वाला फंक्शन लेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए जिसमें एक्स इज़ लेस देन 2 वुड बी यूज्ड। ठीक है जी, सो लेस देन 2 इस फंक्शन में यूज़ हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 1। आई कैन शो इट टू यू हियर, यू कैन सी एक्स इज़ लेस देन 2। ये कौन सा फंक्शन यूज़ हुआ हुआ है, दिस वन एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये बेसिकली आपकी डोमेन्स हैं और ये आपके फंक्शंस हैं। ठीक है, ये तीनों, दिस वन इज़ यूज्ड ओवर हियर, सो वी विल से ओके देन फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट माई फंक्शन वुड बी दिस। अब कुछ नहीं करना, ये -2 ऊपर यूज़ नहीं होगा, एज यू ऑलरेडी नो। यू विल जस्ट रिप्लेस दिस x विद दिस 2, सो 2 स्क्वायर माइनस 1, व्हाट द आंसर इज़ 3। राइट हैंड लिमिट अगेन फंक्शन यूज़ होगा आपका जहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन 2 है। कहाँ पे है x ग्रेटर देन 2, लुक एट दिस, यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो है, इक्वल वाला हमने वैल्यू ऑफ द फंक्शन में ले लिया। x इज़ ग्रेटर देन 2, सो दिस वुड बी यूज्ड विच इज़ 3। Let us check this out. Left right hand limit में you can see you took as 3 and 3 is a constant function, so it would remain as it. Now look at this, left hand limit, right hand limit, they are both equal, so it means limit of the function exists, and what is it? It is equal to 3. अच्छा, do write over here by the way that limit x approaches to 2 f of x exists and it is 3, right? Next step would be condition 3. And what is our condition 3? If you remember, we had to check if the two values, this one and this one, are equal or not. ठीक है, कि लिमिट ऑफ द फंक्शन आपकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल है या नहीं। yes, they were equal, so the function was continuous at x is equal to 2. Let us discuss the same thing for x is equal to -2 as we did earlier. सो -2 पे क्या होगा, कंडीशन 1 अगेन वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आप वो देखोगे कि अगर हो सकता है ऐसे में दिया हो -2, लाइक x इज़ लेस देन इक्वल टू -2 या x इज़ ग्रेटर देन -2 हो सकता है। अब जहाँ पे इक्वल यूज़ हुआ है, सपोज दिस वन, इसकी सीध में आप देखोगे यहाँ पे कौन सा फंक्शन गिवन है, दैट फंक्शन वुड बी यूज इन योर वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लेट मी शो इट टू यू हियर। देयर यू गो, -2। अब यहाँ पे चूँकि आप देख सकते हो इक्वल यूज़ हुआ है, सो दिस फंक्शन वुड बी यूज्ड राइट फॉर वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो आप करेंगे f ऑफ -2 इक्वल्स टू 3 इंटू -2 इक्वल्स टू -6, राइट। यही चीज़ हम पहले भी हमने डिस्कस की है। सो आई एम गोना शो यू हियर द रिटन वर्क। ये फंक्शन आपने लिया उसी तरह से, और -6 इज़ द आंसर। कंडीशन 2, व्हाट इज़ कंडीशन 2? लिमिट ऑफ द फंक्शन, कि क्या ये एग्जिस्ट करती है या नहीं। इसके लिए यू ऑलरेडी नो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट। सो लेट अस चेक दिस आउट। उसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप देखेंगे कि किस फंक्शन में x इज़ लेस देन -2 लिखा हुआ है, उस फंक्शन को आप ले लेंगे फ्रॉम दैट पीस वाइज फंक्शन जो आपको गिवन है, और यू विल सिंपली रिप्लेस योर x विद दैट वैल्यू। दिस इज़ योर आंसर। और राइट हैंड लिमिट के लिए आप क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 प्लस लाइक दिस, और जो फंक्शन आपको x ग्रेटर देन -2 के लिए दिया हुआ होगा, लेट मी शो यू दिस थिंग अगेन। ग्रेटर देन -2 के लिए दिस वन, और फंक्शन इज़ दिस वन, तो हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे फॉर ग्रेटर देन 2 विच इज़ x स्क्वायर -1, राइट। लेट अस चेक दिस आउट। ओके, देयर यू गो, x स्क्वायर -1 दिस वन। अब x की जगह आपने सिंपल वैल्यू रिप्लेस कर दी विच इज़ -2 स्क्वायर -1 -2 होल स्क्वायर मीन्स 4 -1 इज़ 3, right? So left hand limit is not equal to right hand limit. It means limit of the function does not exist. Hence the function is discontinuous at x is equal to -2. Very, very important topic, very important concept. The remaining exercise is all about this concept which you did in question number 3.
इन डिटेल। सो वो सारा इसी के बारे में है, ठीक है जी। Should I give you people the recapitulation? I think it would not be needed. Okay, assignment is question number 1. I know I have done all the parts and discussed them in detail, but आपने 3 पार्ट जो थर्ड जिसमें मॉड्यूलस x माइनस 5 होल मॉड एट c इज इक्वल टू 5 ये आपने ज़रूर करके मुझे सेंड करना है। आई हैव टू चेक योर स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 2 आई डेंट डू एनी ऑफ द पार्ट बिकॉज आप खुद करो, यू विल गेट टू नो हाउ to do this. Thankfully most of you don't have the keys, शुक्र है। सो प्लीज़ डू नॉट डू इट दिस वे कि एक आधा बच्चा करे और फिर उसको फॉरवर्ड करे। प्लीज़ डू इट इंडिविजुअली, अपना दिमाग यूज़ करें, डू इट बाई योर सेल्फ एंड देन सेंड देम अक्रॉस सो दैट आई कैन चेक इट। एंड थर्ड वन विच आई डिड इन डिटेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, और शॉर्ट भी आ जाता है लेकिन लॉन्ग ज़्यादातर। जो रिमेनिंग सारी एक्सरसाइज रह गई है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और सिर्फ यही कॉन्सेप्ट यूज़ होना है। सो दैट्स इट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।